चलिए, so we have to start this chapter 5, which is arrest, starting from section 41 to 60A, amended in 2009 with the Amendment Act, 2008 Amendment Act, right? तो सबसे पहले सेक्शन 41 हमको इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक क्वेश्चन इसके अंदर से पीटी के अंदर आएगा ही आएगा, राइट? पीटी के अंदर आएगा ही आएगा। दिस इज द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस व्हेन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो बेसिकली ये सेक्शन हमको, सेक्शन 41 इज टेलिंग अस कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी, वो क्या क्या क्राइटेरियाज होंगी वेयर द पुलिस ऑफिसर हैव अ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, राइट? Basically this section is distributed in two clauses, clause 1 and clause 2। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। Clause 1 is being divided into sub clause extending from A till I, A to I। So this is the list, basically list of cases where PO can arrest without warrant, right? A से लेके I तक वो लिस्ट है, समझ लीजिएगा। तो दो क्लॉजेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट क्लॉज में सिचुएशंस दे रखी हैं, लिस्ट दे रखी है ए से लेके आई तक, द केसेस इन विच पुलिस ऑफिसर हैव अ पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस लिस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, लेट मी रीड द लिस्ट, राइट? तो एक बार रीड करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, याद कैसे करना है वो फोकस करेंगे। ये लिस्ट हमको याद होनी चाहिए विद सेक्शन नेम। पढ़ता हूँ। अ पुलिस ऑफिसर में without an order from the magistrate and without warrant arrest any person। तो ये चीज क्लियर हो गई। सेक्शन 41 is telling you that the situations in which police officer not required, उसको जरूरत नहीं है किसकी, वारंट की या फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन की, राइट? वो सिचुएशन है। पहला ए, who commit in presence of police officer the cognizable offense। This is the first situation। Let me read first, फिर हम लिखेंगे बात को। आप सिर्फ बेयर एक्ट देखिए, अभी बेयर कॉपी के अंदर कुछ नहीं। बी सिचुएशन, against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years with or without fine if the following conditions are satisfied. Namely, first, the police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. Second, the police officer is satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense or for proper investigation of the offense or to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. D, to prevent such person from making any inducement, threat or promise to person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer. E, as unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. And the police officer shall record while making such arrest his reason in writing, provided that the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision
of this subsection, record the reason of writing for not making such arrest. BA, against whom a credible information has been received that he has been committed a cognizable offense, punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine, or with death, and the police officer has reason to believe on the basis of information that such person has committed the said offense. मुझे ये read करने दो. तो we have read 3 clauses, A, B and BA. Basically, पहली situation is, first situation बता रहा हूँ, मुझको B, A, B और BA explain करने की कोशिश कर रहा हूँ. PO, when can arrest without warrant. पुलिस ऑफिसर है और पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट कौन से केसेस के अंदर होती है बताइए, कौन से केसेस के अंदर होती है उसके पास पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट? बिना सेक्शन के बता दीजिए, हमने पढ़ा है जल्दी. रेशमा बेटा कहाँ होती है? वेरी गुड, वेरी गुड. कहीं कहीं पढ़ा है? हमने नहीं पढ़ा. प्लीज, प्रियांशु मैम कहाँ होती है पुलिस ऑफिसर की पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कॉग्निजेबल, एग्जैक्टली, वेरी गुड, राइट, यू आर राइट. तो पुलिस ऑफिसर की पावर इन एग्जैक्टली रेशमा, यू आर राइट, मैंने सुन लिया. कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. इसी को एक्सप्लेन करता है 2A, B एंड BM. बोलता है अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ पुलिस, अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर हुआ है, अरेस्ट, यू डायरेक्टली कैन अरेस्ट. तो पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, यू अरेस्ट अंडर सेक्शन 41A. राइट, कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट नॉट इन प्रेजेंस. Cognizable offense है but not in the presence of the police officer. Rather, what is happening? Rather, PO get information. I will say credible information. और complaint. ठीक है. और otherwise, खुद से उसको पता चल गया. अदरवाइज का मतलब कैसे भी सिचुएशन कह रहे हैं, ऑफेंस इज नॉट बीन कमिटेड in the presence of police officer, rather police officer is getting a credible information or otherwise or through complaint. What? That cognizable offense is committed. कि cognizable offense उसके सामने हुआ है, तब क्या होगा? वो cognizable offense हुआ है तो he is getting an information that उसके सामने नहीं हुआ है, but either through some complaint or either through some information और खुद से पर से उसको he get a knowledge that there is a cognizable offense. तो वो चेक करेगा कि दो तरीके से है. Offense punishable up to 7 years. वो क्या चेक करेगा कि offense is such a nature that it is punishable up to 7 years. Then क्या? He can make arrest without warrant. वो अरेस्ट कर लेगा बिना वारंट के. ठीक है, ये पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. बट he should write the reason of arrest. He should write the reason of arrest. क्या क्या रीजन ऑफ अरेस्ट हो सकते हैं? फर्स्ट, that
it was necessary to stop future offense, that the same offense should not be committed further. तो further और future offense नहीं होना चाहिए, पहली condition. Second condition, he can check arrest needed for proper investigation. Right. Third situation क्या हो सकती है? That if not arrested, he may tamper the evidence. Fourth, if not arrested, just hold on. If not arrested, the witnesses will be induced or threat by accused. ये 4 ग्राउंड है, समझ लीजिएगा. तो पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई है और उसको लग रहा है एक इंडिविजुअल है, उसने ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट वो ऑफेंस ऐसा है 7 ईयर का, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है. बट अरेस्ट करने के पीछे ही मस्ट एटलीस्ट इनमें से कोई एक, इन 4 में से कोई एक रीजन होना चाहिए. ठीक है. अगर ये रीजन नहीं है, if these reasons does not exist, अगर रीजन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो अरेस्ट नीडेड. हाउएवर यहां पर भी क्या हुआ, पीओ शुड एक्सप्लेन व्हाई नॉट अरेस्टेड. ठीक है. तो वो बताएगा कि व्हाई फील कि ये सारे रीजन नहीं होंगे, है ना, उसको इसकी भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी. इज इट क्लियर और नॉट? नहीं हुआ क्लियर? बहुत सिंपल है. पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, वो अरेस्ट कर लेगा. देयर इज नो नीड फॉर एनी रीजन. कैसी भी टाइप का ऑफेंस है, छोटा कॉग्निजेबल हो, बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, डजंट मैटर. पुलिस के सामने कॉग्निजेबल नहीं हो रहा है, उसके पास एफआईआर आई है, या उसको किसी के थ्रू और पता चल रहा है, या खुद ही उसको पता चल गया, तो वो जिसके खिलाफ उसको इन्फॉर्मेशन मिली, अगर उसको उसके ऊपर ही सस्पेक्शियस अबाउट दैट पर्सन, उसको लगता है कि ये इंडिविजुअल है, इसने ये ऑफेंस किया है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है. ठीक है. बट अरेस्ट करते वक्त वो ये देखेगा कि जिस ऑफेंस में मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूँ, द ऑफेंस व्हिच आई एम अरेस्टिंग हिम, उसकी पनिशमेंट आईपीसी में कितना है. अगर पनिशमेंट 7 साल से नीचे है, लेस देन 7 ईयर, तब क्या होगा, यू हैव टू राइट 1 2 3 4, इनमें से कोई एक. ऑल दिस इज और याद करने का सिंपल तरीका है, इन्वेस्टिगेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी. राइट. फर्स्ट सेकंड क्या है, हो सकता है वो कोई और फीचर ऑफेंस कर दे. तीसरा क्या है, वो एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग कर सकता है. चौथा क्या है, वो विटनेसेस के साथ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस कर सकता है. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये 4 कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, these 4 conditions are not existing against this individual, तो जिस इंडिविजुअल के खिलाफ वो आया है उसके खिलाफ ये 4 सिचुएशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, देन व्हाट, देयर इज नो नीड टू अरेस्ट. बट वहां पर भी मजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर को लिखना पड़ेगा कि व्हाई आई एम नॉट अरेस्टिंग. और इस सिचुएशन में प्रियांशु मैम क्या होता है बताइए प्लीज, ये आपके लिए क्वेश्चन है. जब अरेस्ट नहीं करते हैं और वो रीजन देता है कि व्हाई आई एम नॉट अरेस्टिंग, तो उसके पास कोई ऑप्शन होता है, एनी ऑप्शन टू दैट पर्सन. सृष्टि, यू कैन आल्सो आंसर. जिन्होंने फैजान सर की क्लासेस ली हैं वो लोग भी आंसर कर सकते हैं. रेशमा भी दे सकते हैं, तुमने भी फैजान सर की क्लास ली है, बताइए. ऐसा इंडिविजुअल जो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड है, ही इज सस्पेक्टिंग दैट यस इसने ऑफेंस किया, बट ही इज नॉट अरेस्टिंग हिम बिकॉज वो ऑफेंस 7 साल से 7 इयर्स के नीचे है, और ही इज नॉट गेटिंग हिम अरेस्ट. बताइए. नॉट अरेस्ट अंडर सेक्शन 40, केस इज सेक्शन 41, बट ही इज नॉट अरेस्टिंग अंडर सेक्शन 41. क्या सिचुएशन, क्या इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा प्लीज.
बहुत बढ़िया। अरे सेक्शन वो इतना बहुत ईजी है। सेक्शन 41A का नोटिस जाता है उसको, नोटिस ऑफ प्रेजेंस। पढ़ाया था प्रेजेंस ने? नहीं पढ़ाया था, तुम्हें आता था, हम पढ़ेंगे अभी। सेक्शन 41A के अंदर नोटिस जो है ना अभी हम, वो यही नोटिस है जिन लोगों को 40 में अरेस्ट नहीं करते हैं, 41 में अरेस्ट नहीं करते हैं, उनको 41 A का नोटिस दिया जाता है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल को भी कोर्ट ये कहेगा कि प्लीज वी आर नॉट अरेस्टिंग यू, क्योंकि हमें तुम पर फेथ है, बट हाँ आप 41A के अंदर वी आर सर्विंग योर नोटिस, आप अपीयर हुआ करेंगे जब जब हम आपको कॉल करेंगे। वी विल स्टडी दैट 41 आल्सो, डोंट वरी। मैं सिर्फ मेमोरी करने के लिए बता रहा हूँ, राइट। फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पनिशेबल, पनिशेबल मोर देन 7 years. PO can arrest without warrant and no reason to explain arrest needed. ठीक है, तो हमारे पास अब देखिएगा, हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 सिचुएशन आ गई। कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने हुआ, बिल्कुल एकदम जस्ट in front of the police officer, you can arrest him, there is no need to explain any reasons. Offense not in front of the police officer, this offense is not happening in front of the police officer, के सामने नहीं हो रहा है, rather police officer is getting the information through third party, through some third fact, और उसके बेसिस पे ही है ना सस्पिशन अपॉन सच पर्सन, उसको सस्पिशन है किसी पर्सन पे, तो ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। बट सिचुएशन 2 है, अगर जिस ऑफेंस में उसको सस्पिशन है वो 7 ईयर से कम पनिशेबल है, you have to follow this process, you have to give reason for the arrest, and reasons are already stated under section 41 clause B. So this is clause B. Whereas if offense is punishable more than 7 years, this is a situation of clause BA, and there is no need to explain, or there is no need to provide the reasons for the same. And this is a proviso of clause B. क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज? तो अगर आप याद करने का सिंपल तरीका, इफ यू आर अ पुलिस ऑफिसर, आपको सबसे पहले राइट टू अरेस्ट एनी इंडिविजुअल विदाउट अ वारंट कहाँ पे है? 41 में। या तो आपके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, आप बिना सोचे समझे पकड़ लीजिए, आपके सामने नहीं हुआ, आपके सामने एफआईआर आई है, तो एफआईआर आया कि मिस्टर एक्स हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, और आपको भी सस्पिशन है कि यस मिस्टर एक्स हैज कमिटेड दिस ऑफेंस। तो आप देखिए जिस ऑफेंस के लिए आप मिस्टर एक्स को अरेस्ट करने जा रहे हैं वो ऑफेंस कैसा है, 7 साल तक का पनिशेबल है, तो आप अरेस्ट कर लीजिए, मना नहीं किया, बट आपको रीजन स्टेट करना पड़ेगा दैट व्हाई यू आर सो डेस्परेट टू अरेस्ट हिम, और वो रीजन इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ये चारों एक साथ हो सकते हैं, दीज 4 रीजंस और एनी ऑफ दीज 4 रीजन, और ऑल दी 4 रीजन डजंट मैटर, राइट? You can arrest. But suppose you find that these are not existing reasons, and you find that this person is not required to be arrested, he will not tamper with evidences, he will not induce witnesses, he will not hamper the investigation, he will not commit any further offense, then no need to arrest him. You release him without arrest, you don't need to arrest him. And what? You give reason that why you are not arresting, that he's a reputed person of the society, won't do it again, or further info effect nahi karega, or investigation can be done smoothly even without being arrested. आप उसको अरेस्ट मत करिए, 41A का नोटिस भी दे सकते हैं, पढ़ेंगे हम नोटिस। Whereas अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये कैटेगरी की है, बी की, और आपने देखा कि मिस्टर एक्स जो है वो 7 ईयर से अबव पनिशेबल है, यू हैव टू गो फॉर अरेस्ट। और अब इस अरेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द रीजन कि वो ये वाले रीजन, these reason must obviously reason in the sense you must be suspicion about cognizable offense, है ना? बट आपको ये रीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसका अरेस्ट क्यों कर रहा हूँ, आपको सस्पिशन है, आप अरेस्ट कर लीजिए, तो बना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज प्लीज। तो क्लॉज ए, बी एंड बी ए,
याद रहेगा नहीं रहेगा, बस चलिए भारती बेटा बताइएगा, अजनी मैम, अजनी बताइएगा, प्रियांशु मैम बताइएगा, अजनी मैम तो आज तो अजनी मेरे से बच गई आज, इसने इतने ऑब्जेक्शन रेज किए, बच भी सकती थी, है ना। यस, 7 ईयर तक, 7 ईयर से नीचे नहीं, 7 ईयर तक पे वी हैव टू गिव द रीजन, और 7 ईयर से ऊपर वाले में रीजन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। यस, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए ये रीजन याद होना चाहिए आपको। दीज 4 रीजन मस्ट बी kept in mind। क्लॉज ए में क्या है, बी में क्या है, और बी ए में क्या है, यू शुड kept in mind। ठीक, और जो मैंने बताया उतना याद रखना, बस क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद क्लॉज सी। अब हम सीधे सीधे क्लॉज लिखना शुरू कर देते हैं, वेरी सिंपल है। 8C to I, वेरी सिंपल, बस पढ़ना है और आपको बताना है। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर either under this code or any other law for the state। तो C is a proclaimed offender। proclaimed offender, that is police officer have power to arrest any person who is a proclaimed offender। you know what is proclaimed offender? अगर आपको नहीं पता है तो CP भगोड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं भगोड़ा। तो कोई इंडिविजुअल जिसके खिलाफ समन इश्यूज हैं, वारंट इश्यूज हैं, और आफ्टर इश्यू ऑफ वारंट और इश्यू ऑफ समन ही इज नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट के पास सेक्शन 82 के अंदर पावर होती है कि वो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसको, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन, तो अगर आज आप, अगर आपका न्यूज़पेपर आता है, रोज न्यूज़पेपर खोल के देखिए, तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर के नीचे से एडवर्टाइजमेंट कॉलम में ऐसे करके रोज कोई ना कोई होता है, सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन लिखा होता है, सेक्शन 82 प्रोक्लेमेशन, उसका फोटो लिखा होता है, और ये कहा कि यहाँ सूचित किया जाता है ये व्यक्ति इस न्यायालय में इस दिनांक को उपस्थित होने की कृपा करे, अगर वो उपस्थित नहीं होगा तो उसको क्या भगोड़ा मान लिया। दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द पर्सन सच एंड सच रेजिडेंस ऑफ सच एंड सच, ठीक है, सन ऑफ सच एंड सच इज बीइंग required to be present in the court on such and such date in the such and such case, and if he does not appear on such and such date then he will be considered as a proclaimed offender or sealed under the court। वो कोर्ट की सील होती है, दैट इज नोन एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन आ गई है और वो कहीं घूम रहा है, पुलिस वाला उसको जहां देखेगा वहां उसको अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो तुमको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रेशमा को डिक्लेयर करा दिया मैंने, और ये गोलगप्पे खा रही थी चौराहे पे खड़े हुए, पुलिस वाला आएगा पकड़ के ले जाएगा, नॉट अ बिग डील, बिकॉज यू आर अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, राइट। डी, in whose possession anything is found which may reasonably be suspect to be stolen property, and who may reasonably be suspect of having committed an offense with reference to such thing। So what is person in possession of stolen property and suspected to be theft and suspected to be thief। सिंपल लैंग्वेज में याद करने का, तो अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी है और पुलिस पूछता है प्रॉपर्टी आपके पास कैसा नहीं आया, बिकॉज पुलिस थिंक इट इज अ स्टॉलन प्रॉपर्टी, और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और पुलिस को सस्पिशन हो रहा है कि दिस इज अ पर्सन हु माइट बी इन्वॉल्वड इन अ सम स्टॉलन मैटर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, डी का सिचुएशन 41 में, पुलिस ऑफिसर हैव पावर टू अरेस्ट सच पर्सन इवन विदाउट वारंट, राइट। डी, एफ, in whose possession, sorry, E, E, who obstruct a police officer while in execution of his duty, or who has escaped or attempt to escape from a lawful custody। तो दो लोग, who obstruct the execution of duty of PO, or who run from lawful custody। तो कोई इंडिविजुअल है, पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो इंडिविजुअल उसको ड्यूटी नहीं परफॉर्म करने दे रहा है, वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर हैव पावर टू अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। ठीक है, पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और
पुलिस की कस्टडी में से कोई इंडिविजुअल भाग गया है, ठीक है, तो वो जहां मिलेगा उसको वहां पकड़ा जाएगा, नो इशू, देयर इज नो नीड टू गो फॉर अ वारंट फॉर दैट पर्सन, उसको वहीं के वहीं अरेस्ट किया जा सकता है। एफ, आर्म डिजर्टर, पढ़ नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आर्म डिजर्टर्स, आर्म या नेवी से जो लोग भाग के आ जाते हैं, कुछ लोग होता है ना आर्मी छोड़ देते हैं बीच में ही, भाग के आ जाते हैं, मतलब दे हैव नॉट टेकन अ रिटायरमेंट, रादर दे रन फ्रॉम द आर्मी, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आर्मी को बीच में छोड़ के आते हैं, दे आर नोन एज डिजर्टर। ये जो डिजर्टर्स होते हैं, ये अगर कहीं मिल जाए, इनकी पूरी लिस्ट निकलती है आर्मी और पुलिस वालों को, वो अगर कहीं मिल जाते, दे कैन अरेस्ट हिम विदाउट वारंट, राइट। लक्ष्य आई हैव नॉट सीन, तो आई वोंट से कि लक्ष्य, तो हो सकता है लक्ष्य में भी है, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, जी, जी को रीड करेंगे। Who has been concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committed on a place of India which is, if committed in India, would have been punishable an offense and for which he is under any law of extradition. This is what is offense in different country, act punishable in India, punishable in India. India have India have extradition treaty with that country. Extradition with that country. तो व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी? बेसिकली कुछ ऐसे ट्रीटीज हैं जो कंट्रीज के बीच में एमओयू साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, कि इफ एनी ऑफेंडर ऑफ योर कंपनी कम टू माय कंट्री, आई विल गिव इट बैक टू यू, एंड इफ माय offender come to your country, you will give back to me. These are known as extradition treaties. इंडिया में अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल आ गया जिसने ऑफेंस किया है आउट ऑफ द इंडिया, और वो जो एक्ट था वो इंडिया में भी ऑफेंस है, राइट, और उस कंट्री के साथ इंडिया का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, देन यस, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट, राइट। एच, हु डिफॉल्ट, सेक्शन 356 क्लॉज 5, ठीक है, सिंपल याद करना है कुछ नहीं। 356 बेसिकली जब हम किसी को जब किसी का कन्विक्शन कंप्लीट हो जाता है, we release that person, तो we take a bond from that person to maintain peace and security, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के बॉन्ड लिए जाते हैं उसके कन्विक्शन कंप्लीट होने पर, 356 के बॉन्ड होते हैं, अगर उनको ब्रीच करता है तो यस यू कैन अरेस्ट इट, तो उसकी भी लिस्ट निकलती है, राइट। आई, अरेस्ट ऑन रिक्विजिशन, सिंपल, बस यही याद रखना है। अरेस्ट ऑन रिक्विजिशन मीन्स, दैट मीन्स आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई एम हैविंग अरेस्ट वारंट, but I'm not going to arrest that person because either that person is not in my jurisdiction or I have got involved in some other work, so I can send my request of arrest to other person, other police officer, so that police officer, though he is not having a warrant issued in his name, still he can arrest without warrant। आया समझ में? मेरे पास I have a legally arrest warrant of Mr. A, बट मैं किसी वजह से उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या तो मेरे उसके बाहर हो गया जुडिक्शन के, या कुछ हो गया, और आई सेंड अ रिक्विजिशन रिक्वेस्ट टू रेशमा कि वो ए जो है वो आपके जुडिक्शन में, प्लीज अरेस्ट एंड सेंड टू मी, एंड रेशमा गोज एंड अरेस्ट हिम। दिस पर्सन कैन नॉट से कि यू कैन नॉट अरेस्ट, रेशमा हैव पावर टू अरेस्ट, कंडीशन इज दिस, द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट द एक्यूज्ड मस्ट सेंड द रिक्विजिशन, तो मैंने उसको रिक्विजिशन भेजा तो उसके पास पावर आ गई टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक। आपको याद करने का सिंपल से आई तक याद करना है, तो आपको अब तो याद रहेगा, कितने लोगों को याद रहेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने, कॉग्निजेबल ऑफेंस पीछे, 7 साल से ऊपर नो कंडीशन, 7 साल तक कंडीशन, 4 कंडीशन है, ठीक है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी, एब्स्ट्रक्शन और एस्केप,
राइट। आर्म डिजर्टर, ठीक है। ऑफेंस एक्सट्राडिशन याद रखना, ऑफेंस मतलब यू सिंपल रिमेंबर द एक्सट्राडिशन, default of 356 clause 5 and arrest on requisition. These are the 8 conditions जो आपको याद रखनी है। ये याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। राइट। Clause 2. I want to read clause 2 simple. Subject to the provision of section 42, no person concerned in a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having no concern shall be arrested except under the warrant of magistrate. So they are what saying? No arrest in cases of non-cognizable offenses without warrant except as per section 42. अभी हम पढ़ेंगे section 42 provides the condition when a police officer can arrest an individual in non-cognizable offense without warrant. तो कहते हैं उसके अलावा in non-cognizable offenses you will not be allowed to arrest any person without warrant except section 42. section 42 सिर्फ एक सिचुएशन है, उसके अलावा कहीं नहीं। We are done with section 41. कितने लोगों को समझ में आया प्लीज? How many people are clear with section 41? How many people not clear? क्लियर, ठीक है। देखिए कुछ छोटे छोटे जजमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। यहीं कर लेते हैं। वन इंपॉर्टेंट जजमेंट इज प्रभु वर्सेस किंग एम्परर, 1944 प्रीवी काउंसिल। दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कुमार वर्सेस स्टेट, 2018 सुप्रीम कोर्ट। कुमार वर्सेस स्टेट 2008 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज आल्सो केस ऑफ अरेस्ट। इसमें क्या हेल्ड हुआ था? दैट इट वाज हेल्ड irregularity or illegal arrest cause suspicion on investigation. Kumar versus State. Another important judgment, Joginder Kumar versus the state of UP, 1994 Supreme Court. ठीक है। इसी के बाद आया था, मतलब इसी को फॉलो कर रहा था। इसका बड़ा जजमेंट हम लोग सब जानते हैं, जिसने सारा अमेंडमेंट कराए थे, डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997। तो जोगिंदर सिंह को एक्सटेंड किया था डी के बासु ने, ठीक है। तो जोगिंदर सिंह सिंपली बताता है कि ह्यूमन राइट फॉलो होनी चाहिए। डी के बासु ने पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन दी थी। तो अभी हम 41A, 41B, 41C एंड 41D जो हम पढ़ेंगे अभी जस्ट आफ्टर दिस, उस सारा का सारा डी के बासु जजमेंट था, उसको फॉलो अप पे आया है सारा का सारा। डी के बासु में जो गाइडलाइंस थी वो आई थी, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर अस इज सोशल एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो मैंने पढ़ा है आपको वो है सेक्शन 41B पे। दिस इज अरेस्ट अंडर सेक्शन 41
clause B can only be made after giving reason. तो अगर सेक्शन 41 के डी के अंदर अरेस्ट करना है यानी कि ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 ईयर, तो रीजन देना मैंडेटरी है. सोशल एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट. एक सवाल है, बताइएगा, आप जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले, कैन यू बी अरेस्टेड इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? If you have committed a cognizable offense, can a police officer have a power to arrest you without warrant? Answer is yes. But how? Can you be arrested in a normal manner? Answer is arrest of judge. Arrest of judge is to be followed by manner given in Delhi Judicial Service Association versus State 1991 सुप्रीम कोर्ट. तो इस जजमेंट के अंदर आया था एग्जैक्टली श्रेया, वेरी गुड. दिल्ली जुडिशियल एसोसिएशन केस, तो दिल्ली जुडिशियल एसोसिएशन सर्विस केस आया था, उसके अकॉर्डिंगली यू विल मेक एन अरेंजमेंट्स. तो वो डीजे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप उसको हैंडकफ नहीं करोगे, देयर आर सच सो मेनी गाइडलाइंस, ठीक है, वो आप सब फॉलो करना पड़ेगा आपको. सिमिलरली arrest in cases of 498 A and domestic violence. 498 A और डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर है उनमें भी अरेस्ट करने का पैटर्न है. दैट इज गिवन इन अमरीश कुमार वर्सेस, बिल्कुल प्रियांशु, यू आर राइट, अमरीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अमरीश, नॉट अर्निश, बट अमरीश इज द राइट आंसर. अमरीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट. ये कुछ जजमेंट्स हैं जो काफी फ्रीक्वेंट हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आप इसको याद रखिएगा. चलें आगे बढ़े. याद रहेंगे जजमेंट्स, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है. 1 2 3 4 5 एंड 6 जजमेंट है, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा. 41, अब बहुत जल्दी खत्म करेंगे. 41 कैपिटल ए, दिस इज नोटिस ऑफ अपीयरेंस. when not arrested अंडर सेक्शन 41. तो अगर कोई सेक्शन 41 में अरेस्ट नहीं हुआ है, पुलिस हैव अ पावर टू मेक हिम अपीयर, ask him to appear under section 41. They can give him a notice to appear. If notice given, appearance is mandate. अगर नोटिस इशू हो गया और नहीं आया तब, if not appear, बताइए क्या होगा? Not appear on notice, person liable under section 182 sorry, IPC. No, not following the public officer, authority of public officer, right? This person, ये जो नोटिस ऑफ अपीयरेंस है जब आएगा, इफ पुलिस ऑफिसर issue
नोटिस ऑफ अपीयरेंस, नो अरेस्ट अलाउड। अगर नोटिस ऑफ अपीयरेंस इशू कर दिया, he will lose his power to arrest। ठीक है, यानी कि अगर उसको अगर अरेस्ट करना है, फॉर अरेस्ट नाउ ही नीड ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बस ये याद रखना, चार चीजें। 41A अभी रीड कर लेता हूँ। तो 41A में कुछ नहीं है, अगर 40 में अरेस्ट नहीं करेंगे, 41A के अंदर हम उसको नोटिस देंगे कि आप अपेयर हो जाइए, आपसे इंक्वायरी करना है। जब जब जिस डेट को उसने नोटिस ऑफ अपेयरेंस को बोला गया, उस दिन आपका जाना मैंडेटरी। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप आईपीसी में लायबल हो जाएंगे फॉर नॉट फॉलोइंग दी अथॉरिटी। मोर ओवर, पुलिस ऑफिसर ने एक बार नोटिस इशू कर दिया, वो अरेस्ट तो नहीं कर सकता, बट अगर आप उसका नोटिस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट ला सकता है कोर्ट के थ्रू। राइट, दिस इज सेक्शन 41 कैपिटल ए। डन, कोई प्रॉब्लम? 42, ओ सॉरी 41B। ठीक है, दिस इज ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। तो ड्यूटी ऑफ, इसको रीड करना है सिर्फ, ऐसा कुछ है नहीं, ये एमसी पीटी में भी कुछ नहीं आएगा। 41A क्या है? ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। सिंपल क्या है ड्यूटी? खाकी ड्रेस पहनेगा, बैच पहना होना चाहिए उसने, वो मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा। ठीक है, सारा डी के पास में जो आया था वो लिखा हुआ है। आई वांट टू रीड इट। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शैल bear an accurate, visible, and clear identification of his name, which will facilitate easy identification. First. Second, prepare a memorandum of arrest, which shall be, first, attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or respected member of the locality of a arrest is made. Countersign a person arrested and inform the person arrested unless the memorandum is attached by the member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। तो कुछ नहीं करना है। ड्यूटीज में क्या है? विजिबल सिग्नेचर होंगे, विजिबल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो वो विजिबल आइडेंटिफिकेशन हेड ऑन करेगा फर्स्टली। सेकेंडली, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर होगा। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विल बी साइंड बाय वन विटनेस। वो कौन हो सकता है? वो फैमिली मेंबर होगा या रेप्यूटेड लोकैलिटी, रेप्यूटेड पब्लिक पर्सन। तो इट कैन बी अ रेप्यूटेड पब्लिक पर्सन हो सकता है। अरेस्टेड पर्सन will be informed that he have right to tell about his arrest to someone known। सिंपल सी। तो अगर पब्लिक ऑफिसर साइन करता है, अगर फैमिली साइन करती है तो ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, बट अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो उसको ये राइट है कि वो पुलिस ऑफिसर ये बात उसको बताएगा और इस बात का रिकॉर्ड भी बना के लिखेगा वहीं पे, ठीक, मैंने इसको इन्फॉर्म किया है। सिंपल। यहाँ पे हमारे लिए कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं बनता है, अगर बनेगा भी तो ये एमसीक्यू बनता है। विटनेस साइन करेगा, एक और हाँ, साइंड बाय अरेस्टेड पर्सन ऑल्सो, ये भी बनता है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो बनता है, क्या उस पे अरेस्टेड इंडिविजुअल के सिग्नेचर होते हैं? आंसर इज यस। कितने विटनेस का सिग्नेचर होते हैं? वन विटनेस का सिग्नेचर होता है। 41C आपको याद रखना है, कुछ नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट में देयर विल बी अ कंट्रोल रूम।
ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम, तो पुलिस कंट्रोल रूम, तो बस सिंपल पुलिस कंट्रोल रूम कहाँ कहाँ होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होगा और स्टेट में होगा, नथिंग टू रिमेम्बर इन दिस। अब तो 41 सी बताता है हर पुलिस जितने डिस्ट्रिक्ट में है या जो पुलिस स्टेट की है वो कंट्रोल रूम बनाएगी, और उन कंट्रोल रूम में ना उन लोगों की लिस्ट लगी होती है जिनको अरेस्ट किया गया है। सिंपल सी बात है, उनके नोटिस बोर्ड पे सारा डिटेल रहता है कि whom have been arrested and everything। 41D इंपॉर्टेंट, ठीक है। 41D इज राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। याद रखिएगा, ड्यूरिंग इंटरोगेशन, तो व्हेन द इंट्रोगेशन इज गोइंग ऑन, जब इंट्रोगेशन चल रहा होता है तब पुलिस ऑफिसर, मूवीज में देखते हैं ना, वो बोलता है विक्टिम एक्यूज कि मैं अपने वकील के सामने बात करूंगा, आई विल नॉट स्पीक अनलेस माय वकील विल कम, राइट। तो दिस इज 41D। 41D उसको राइट देता है कि वो अपने वकील से बात करे कुछ भी बोलने से पहले। सवाल दो बनते हैं, पहला यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा, जनरल एमसीक्यू एमपी वगैरह में आता है तो ये आता है कि वेयर इट इज गिवन दैट accused have a right to get advice of a advocate during the interrogation। हरियाणा में अगर सवाल बनेगा तो सवाल दे विल नॉट आस्क नॉर्मली 41D में क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है accused have a right to take advice of advocate during interrogation, whole of interrogation, only start of interrogation, 4 1 and second। बताइए बताइए जल्दी आंसर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। आंसर इज ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट कहता है ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि होल ऑफ द इंट्रोगेशन। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब भी सवाल पूछोगे तब हर वक्त एडवोकेट का होना जरूरी है, नहीं। एंड हेंस होल ऑफ द इंट्रोगेशन इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन प्लीज। वो यहाँ आपको कंफ्यूज करते हैं और आप नॉर्मली लिख के आते हो होल इंट्रोगेशन, ठीक है। तो आंसर इज नॉट होल इंट्रोगेशन। चलिए 41 days there। 42 talk about arrest without warrant in non-cognizable cases। अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस है उनमें अरेस्ट विदाउट वारंट कब हो सकता है, कब, when PO ask for name and address, accused did not reveal or gave wrong name and address, PO can arrest till
नेम एंड एड्रेस नॉट फाउंड। सिंपल। तो अगर पुलिस ऑफिसर के सामने किसी ने, या उसको पता चला किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर जनरली व्हाट दे डू, दे उसका नाम रिकॉर्ड कर देते हैं और उसका एड्रेस रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डू इन्वेस्टिगेशन और they cannot arrest in non-cognizable offense without warrant. However, this accused person is not revealing his name or address. वो अपना नाम और एड्रेस रिवील ही नहीं कर रहा है ठीक से. Then what? Then they can ask, they can keep him into the custody till उसका नाम और एड्रेस रिवील नहीं होता है. ठीक है. और याद रखिएगा, अगर ये किसी भी इंडिविजुअल को पुलिस जो अपनी कस्टडी में है बिना परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट 24 घंटे ही रख सकती है. दैट मीन्स अगर 42 आवर में उसका नाम रिवील हो जाता है, 24 आवर्स में, सॉरी 24 आवर में अगर उसका नाम रिवील हो जाता है, वो उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देंगे. बट अगर 24 आवर्स में उसका नाम रिवील नहीं होता है तो वो उसे अपने पास नहीं रखेंगे. नाउ दे विल प्रोड्यूस हिम टू द मजिस्ट्रेट और फिर वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा. तो सेक्शन 42 का जो अरेस्ट है वो मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए है. 24 आवर्स के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा अरेस्ट होगा नहीं होगा. ठीक है. तो इट इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ 24 आवर्स. तो 24 आवर्स के अंदर दे गॉट the name and address of that person, they must release that person on personal bond with the condition to appear before the court. Right? चलिए, बहुत इजी है सारा कुछ. 43 सेक्शंस जहां मुझे लगेगा रीड करना चाहिए, आई विल रीड फॉर यू, डोंट वरी. बट जहां मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप उस सेक्शन को घर पे एक बार रीड जरूर करिएगा, ताकि एक आधा वर्ड अगर मुझसे मिस होता है तो यू शुड नो कि नहीं. तो व्हेन आई एम कंप्लीटिंग इट, जैसे आज थोड़ा स्पीड बढ़ाया, कल और स्पीड बढ़ जाएगा, तो यू मेक श्योर कि आप घर पे इसको करें सेक्शंस को. 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन. तो पुलिस ऑफिसर के अलावा प्राइवेट पर्सन, मैं और आप अरेस्ट कर सकते हैं. आंसर इज यस. अरेस्ट करने का प्रोसेस क्या है? प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है? याद करने का तरीका, व्हेन cognizable offense committed in front of such private person. Simple. अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट, बट कब अरेस्ट करेगा? जब उसके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो. कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल, तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा. अरेस्ट करके कहां लेके जाएगा? टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. और वहां पे क्या होगा? पीओ विल डू रीअरेस्ट, विल डू रीअरेस्ट. पीओ द्वारा से अपने पर्सनल लेवल पे अरेस्ट करेगा. वो चेक करके अरेस्ट करेगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है. राइट? यानी कि 41 की सिचुएशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. तो प्राइवेट पर्सन सिर्फ इतनी देर के लिए अरेस्ट कर सकता है जितनी देर पुलिस ऑफिसर नहीं है. तो मेरे सामने कोई इंडिविजुअल है जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, और आई कैन नॉट टेक अ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अदरवाइज दिस पर्सन विल रन अवे. देन व्हाट आई विल डू? आई कैन अरेस्ट दिस पर्सन and take him to the nearest police station, any police station which is there nearest. And I will, when I reach there, I will tell the police officer that this person has committed this offense. The police officer will check whether it is a case of 41 or 42. If it is a case of 41, he will rearrest that individual. Or if it is a case of 42, he will take the name and address of that person and leave him. Right? तो आपको सिर्फ इतना रखना है. 43 इसका सेक्शन नंबर याद रखना है. 43 इज अ अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन. और कब अरेस्ट करता है ये याद रखना, जब उसके सामने बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब. ठीक है. 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट. ठीक है. याद रखना उसके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर. तो मजिस्ट्रेट अपने लोकल जुरिडिक्शन के अंदर किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसको लगता है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या कोई बात हुई है. ठीक है. और ये मजिस्ट्रेट इज बोथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, डोंट वरी.
क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना, तो इट कैन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कैन बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर उसके लोकल जुडिशन में कोई ऑफेंस हो रहा है, उसको लगता है जिसको इसमें अरेस्ट होना चाहिए, वो खुद अरेस्ट कर सकता है 44 में, बट वो कौन सा एरिया होना चाहिए, उसका लोकल जुडिशन। तो फॉर एग्जांपल कोई गाजियाबाद के जज है, वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उनके सामने कोई ऑफेंस हो गया एंड ही इज अरेस्टिंग एन इंडिविजुअल, ही इज अरेस्टिंग अंडर व्हिच सेक्शन, ही इज अरेस्टिंग अंडर व्हिच सेक्शन। गाजियाबाद के जज साहब अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तभी यहाँ पर लक्ष्मी नगर में उन्होंने किसी एक बंदे को ऑफेंस करते हुए देखा और उन्होंने उसे पकड़ लिया। ही इज अरेस्टिंग अंडर व्हिच सेक्शन? वेरी गुड, बताइए 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 बताइए, सबके आंसर आ रहे हैं, गुड, दीजिए आंसर। ही इज अरेस्टिंग अंडर सेक्शन 43 एग्जैक्टली, ही इज एक्टिंग एज अ प्राइवेट पर्सन, क्योंकि वो अपने जुडिक्शन के बाहर अरेस्ट कर रहे हैं, राइट, इट इज 43 एग्जैक्टली। चलिए सेक्शन 45, ठीक है, समझिएगा। नो आर्म्ड पर्सन arrest be done for act done during the official duty। तो अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त कुछ करते हैं, उसके लिए उनको अरेस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ स्टेट और सेंटर। तो अगर कोई आर्म, व्हेन आई से आर्म्ड, आई मींस टू से स्टेट आर्म फोर्सेस भी होती है ना, तो या तो सेंट्रल आर्म फोर्स है, स्टेट आर्म फोर्स है, अगर उसके कोई ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे कुछ ऐसा एक्ट किया जो ऑफेंसिबल है, you will not arrest him until you take the prior permission of the state or the central government, as the case may be, जैसा भी केस हो। Section 46, another good question for MCQ, arrest how में। देखिए अरेस्ट समझिएगा, अरेस्ट अगर मैन का है और वुमेन का है, मैन की सिचुएशन में टच करना एंड कन्फाइन करना मैंडेटरी। तो if arrest of a person, the police officer shall confine and touch the body of that person, whereas if it is woman, oral submission is enough. Submission by accused is enough, ठीक है। और अगर टच करना हो, if touch mandatory, if touch is needed, यानी कि उसको वो he is not allowing और या फिर वो not accepting और not giving up और वो उसके against वो कर रही है, that is touch is needed only by women police, ठीक है। तो अरेस्ट हाउ मेड, टच या कन्फाइन ऑफ द बॉडी से ही अरेस्ट होगा, उसके अलावा अरेस्ट नहीं होगा। मेन के मेंस की कंडीशन में ओरल कन्फाइन, ओरली नहीं होता अरेस्ट, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ठीक है। बट मैं, ठीक है, बट सपोज यहीं पे एक ऐड ऑन है, एग्जांपल ऐड ऑन है, हाउ इफ मैन गेव ओरल सबमिशन, टच नॉट नीडेड, दोनों में उल्टा है। वुमेन में ओरल सबमिशन इज फर्स्ट और उसके बाद टच अगर जरूरत है तो, और मैन में टच फर्स्ट, बट अगर टच के बिना वो बिना ही कुछ करे, ही इज विलिंग टू गिव यू सबमिशन, फिर आपको जबरदस्ती टच करने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली यू डू टच, ठीक है, सिंपल, नथिंग एल्स।
एक और क्वेश्चन है, कैन यू कॉज डेथ while making arrest? बताइए, कैन यू मेक अरेस्ट? कैन यू मेक डेथ इन द केस ऑफ अरेस्ट? देखिए, समझिएगा, इसका आंसर समझिएगा। आंसर इज नो। आंसर इज नो, यू शुड नॉट मेक डेथ। ठीक है, सेक्शन 46 का क्लॉज 3 कहता है, सिर्फ हमारे लिए वो पढ़ना है, क्या बोलता है मैं पढ़ना चाहता हूँ। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट कॉज टू ऑफेंस पनिशेबल डेथ और इम्प्रिजनमेंट। नो, नॉट अलाउड एक्सेप्ट offense punishable with death or life. तो if any individual, ठीक है, if any individual is not willing or not giving up and he is not giving you arrest, you cannot. The person is not accepting. Person not accepting arrest. अगर पर्सन अरेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो कैन यू कॉज डेथ? आंसर इज नो, एक्सेप्ट इन द केसेस व्हेन इट इज पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट। मोर ओवर आप इसी को उसके साथ भी रीड करिएगा, सेक्शन 49 यही लिखिएगा, सेक्शन 49 स्टार बना दीजिएगा इसको, है ना। सेक्शन 49 कहता है, क्या कहता है? यू शुड नॉट, यू देखिए, अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेन देन इट इज नेसेसरी। नो एक्सेस, नो रेस्ट्रेन more than necessary to restrain. No force, sorry, no force more than necessary to restrain escape to be applied. ठीक है, तो जितनी नेसेसरी रेस्ट्रेन है उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो सेक्शन 46 क्लॉज 3 रीड में सेक्शन 49 क्लियर कर देता है कि सिर्फ उतनी ही रेस्ट्रेन की जरूरत है जितना उसको एस्केप होने से बचाया जा सके। और ये रेस्ट्रेन डेथ और इम्प्रिजमेंट किन मैटर्स में जाती है? उन्हीं मैटर्स में जा सकती है जहां पर ऑफेंस डेथ या पेनल्टी वाला है, वरना नहीं जाएगी। राइट, डन। 47 आपको रीड करना, रीड कर लीजिएगा इसको। मैं इसको बता देता हूँ आपको है क्या सेक्शन 47। मेरे साइड से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इंडिविजुअल है कि इफ समबडी इज, आप पुलिस वाला अगर किसी का पीछा कर रहा है और वो उसके घर में, किसी घर में घुस गए, तो आप क्या करोगे? तो 47 बताता है कि आप उस घर में जा सकते हो और उसको निकाल के ला सकते हो बाहर, बट उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आप उस घर में जो लोग हैं उनको इंटिमिडेट करोगे कि दिस एक्यूज्ड इज एंटर्ड इन द हाउस एंड वी रिक्वेस्ट यू टू कम आउट। तो आप उस घर के लोगों से बोलोगे कि बाहर आ जाइए, अगर, और उनको रास्ता दोगे बाहर आने का। अगर वो बाहर नहीं आते हैं तो आप फिर गेट तोड़ोगे और आप अंदर जा सकते हो। बट जब आप अंदर जा रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, यू मेक श्योर दैट वो लेडीज जो सोसाइटी में ओपनली नहीं रहती हैं, ठीक है, आप उनको पूरा मौका दो कि वो साइड हो जाए। राइट, आप उनके कमरे में जाके डायरेक्ट एंट्री नहीं करोगे जब तक उनको पूरा स्केप का या फिर अपने आप को अलग करने का मौका नहीं मिलेगा। दिस इज अ सिंपल गाइडलाइन फॉर अ पुलिस 47। ठीक है, 48 नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको रीड करना है तो आपको रीड करना है, लेकिन यू रीड इट। सेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको ही पता होना चाहिए, बट मैं आई एम टेलिंग यू व्हाट इज 47। 48, अगर कोई एक्यूज्ड है जो मेरे जुरिस्डिक्शन में था, मैं उसे पकड़ रहा था और वो भाग गया है किसी और जुरिस्डिक्शन,
तो मुझे उसके लिए स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका पीछा करते करते दूसरी जुरिडिक्शन में भी जा सकता हूँ। मूवीज में आता है ना, पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, आगे आगे इंस्पेक्टर वो गुंडा भाग रहा है, पीछे पीछे गाड़ी चल रही है, तो वो पता गाड़ी लेते लेते पता चले दिल्ली से गाजियाबाद में घुस गया, तो आई एम पॉजिटिव गेम, वो गाजियाबाद में चला गया, तो अब मैं क्या करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा गाजियाबाद के गेट के बाहर कि अरे यार ये तो चला गया दूसरे एरिया में, अब मैं क्या करूंगा। नहीं, ही कैन गो एंड कैच हिम। तो उसके लिए आपको फिर अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को परसू कर रहे हो, परसू करते करते आप किसी और जुडिक्शन में चले गए हो, तो यू आर अलाउड टू अरेस्ट दैट पर्सन आउट ऑफ योर जुडिक्शन आल्सो, अलाउड। ठीक है, पर्सुअल के केसेस में। 50, 49 we have done. 50, person arrested is to be right of an accused, right of accused to get information regarding grounds of arrest. 50, सिंपल इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। तो जिस आदमी को अरेस्ट किया उसको उसके ग्राउंड्स बताने की ड्यूटी है पुलिस की, और ये राइट है उस आदमी का कि उसको पता होना चाहिए। सेक्शन 50 बात करता है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट शुड बी नोन टू द accused और अरेस्टेड पर्सन। ठीक है। 50 कैपिटल ए इंपॉर्टेंट। ठीक है। ड्यूटी ऑफ अ पीओ टू इन्फॉर्म द अरेस्ट टू नॉमिनेटेड पर्सन। तो 50 और 58 दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। 50 में राइट है एक्यूज का कि उसको पता होना चाहिए, और 50 में वो ही राइट एज अ ड्यूटी इंपोज कर दिया गया है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि आप एक्यूज से, अरेस्टेड पर्सन से एक इंडिविजुअल का नाम नॉमिनेट कराओ, उसको रिकॉर्ड करो, और उस नॉमिनेटेड इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करो कि दिस इंडिविजुअल इज बीइंग अंडर आवर अरेस्ट हियर एंड यू आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय सच पर्सन एंड वी आर इन्फॉर्मिंग यू। और इस सब का वो डिटेल रखेगा बना। राइट। 51 सिंपल, search of arrested person. Search of arrested person. This means police officer have a right to make a search to arrested person. Search मतलब उसकी जो जिसको कस्टडी में लिया उसकी पर्सनल सर्च की बात कर रहे हैं। तो 51 give a power to a police officer to make a search to the arrested person. Nothing else to study. कुछ और नहीं पढ़ना है। और प्लीज नोट्स पे लिखते रहिएगा ना, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। कुछ और याद नहीं करना, इसको इसका बेयर एक्ट भी रीड नहीं करना है आपको अंदर से। प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ अगर वही लिख लीजिए काफी है। ठीक है। 52, if any offensive weapon found in arrest, you have to seize such a weapon, take into court, उसके बाद कोर्ट में लेके जाएगा। सिंपल से। तो जब वो सर्च कर रहा है 51 में और उसके बीच में उसको कोई चाकू मिल गया, छुरी मिल गया, ऑफेंसिव वेपन एक्यूज के पास मिल गया, तो वो तुरंत के तुरंत उसको सीज कर ले और सीज करके कोर्ट में जाके सबमिट कर दे। राइट, सीजर होता है ये। 53, medical examination of the accused. Medical examination of accused on request of police officer. सिंपल सिंपल याद करना और कुछ नहीं। 53 में अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस इंडिविजुअल का एग्जामिनेशन होना चाहिए बिकॉज दिस मेडिकल एग्जामिनेशन कैन हेल्प फ्यूचर ट्रायल में, मैंडेटरी नहीं है ये। 53 इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑन द विल, ऑन द डिजायर ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है। 53
is at the desire of the police officer. अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसा मैंडेट है, लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कराते हैं. 53A में, ठीक है, it is the medical examination of rape accused. ये मैंडेटरी होता है. अगर कोई रेप एक्यूज आया तब मैंडेटरी, इसके अंदर डीएनए प्रोफाइलिंग एवरीथिंग इज देयर. रेप विक्टिम का कहाँ होता है, कोई बताएगा? रेप विक्टिम मेडिकल एग्जामिनेशन प्लीज, जल्दी. वेरी गुड. 164 कैपिटल है, ठीक है, 164 कैपिटल है, तो वो भी मैंडेटरी है और ये भी मैंडेटरी है. तो 53A में अगर कोई रेप विक्टिम आता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने का जो तरीका, स्वैप लेना, ब्लड सैंपल्स लेना, डीएनए लेना, वो जो तरीका 53A में लिया हुआ है. सिमिलरली सेम प्रोसेस है 164 कैपिटल ए के अंदर. एंड लास्ट 54, ये तीनों मेडिकल एग्जामिनेशन है. दिस इज मेडिकल एग्जामिनेशन, medical examination on request of accused, or I can say mandatory medical examination. तो ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी है. जब भी एक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा ये वाला मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली कराया जाता है. It is to be done. और कुछ भी नहीं करेगा. ये मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, याद रखना, ठीक है. और अगर एक्यूज्ड वुमेन है तो इट शुड बी अ वुमेन मेडिकल प्रैक्टिशनर. एक ऐसे सवाल है से दिमाग में आ गया चलते चलते. ए को अरेस्ट किया, समझ लीजिएगा बात को. ए को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, चार्जशीट सबमिट कर दी. अभी कॉग्निजेंस नहीं हुआ है, चार्जशीट सबमिट कर दी है, पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है. मजिस्ट्रेट ने भी अभी चार्ज फ्रेमिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया है. अरेस्ट हुए हुए 2 साल हो चुके हैं. दिस प्रोसेस हैज गॉन 2 years. अब आफ्टर 2 years दिस इंस्पेक्टर वांट अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 53. पुलिस ऑफिसर जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहता है एक्यूज्ड का 53 में. विल इट बी अलाउड बाय द पुलिस और वो मजिस्ट्रेट और नॉट? क्या उसको अलाउ कर दिया जाएगा? बताइए, हाँ या ना? नो. आंसर इज यस. 53 का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो ये नहीं है कि ऑन द डेट ऑफ अरेस्ट ओनली. इट कैन बी डन एट एनी. तो वहां पे लिखा हुआ है व्हेन द पुलिस ऑफिसर फील. तो जरूरी नहीं है वो जिस दिन अरेस्ट हो उसी दिन फील करेगा, एनी डे. तो सेक्शन 53 का एग्जामिनेशन कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ टिल द डेट ऑफ एग्जाम इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन. जब तक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे कभी भी पुलिस ऑफिसर को जब लगे, पहले दिन लगे, दूसरे दिन लगे, लास्ट डे ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगे, ही कैन गो फॉर 53 का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है. हेल्ड इन शिवा वेल्ला वर्सेस शिवा वेल्ला बहन, ठीक है, बहनिन बहनिन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2015 सुप्रीम कोर्ट, राइट. क्लियर हुआ प्लीज? चलिए, एक मुझे लगता है जो ऐसा क्वेश्चन फंस सकता था, वैसे यहाँ फंसेगा नहीं. ऐसे ये डायरेक्ट सेक्शन पूछते हैं और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, डोंट वरी. 54 कैपिटल ए, इट्स अ टीआईपी ऑफ अरेस्टेड पर्सन. सिंपल, और कुछ याद नहीं करना. टीआईपी ऑफ अरेस्टेड पर्सन. तो अगर पुलिस को लगता है टीआईपी व्हाट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड,
डोंट वरी, जिनको नहीं पता है उसको मैं जब एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा तो बता दूंगा। तो सिंपल याद करने का तरीका ये है कि जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो जो विटनेसेस होते हैं उनकी शनाख्त की जाती है, शनाख्त कराई जाती है, उसके थ्रू पहचान कराई जाती है। किसके थ्रू? विटनेसेस के थ्रू। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उनकी पहचान कराई जाती है, जिन लोगों ने उसे देखा है उसके थ्रू उसको, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त कराना। तो जब किसी की शनाख्त कराई जाती है अरेस्ट होने पे, ठीक है, उसको TIP बोलते हैं। सेक्शन 54 कैपिटल A पावर करता है, एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर उसको लगता है किसी इंडिविजुअल की TIP कराना जरूरी है, he can go for that, he is authorized to do that, no issue। ठीक है, वो TIP करा सकता है। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्टेड पर्सन गो थ्रू अ TIP, सिंपल, नथिंग एल्स। 55 नॉट इम्पॉर्टेंट, 55A याद रखना है। ठीक है, PO इज, पुलिस ऑफिसर इज responsible for health and care of arrested person। तो अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ का, खाने का, हेल्थ का सब लोगों को पता है हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाता है, पुलिस है। तो उनका, उनको सुबह कितना मारना है, दोपहर को कितना मारना है, शाम को कितना मारना है, सुबह कितना खिलाना है, दोपहर को कितना खिलाना है, शाम को कितना खिलाना है, उसका ध्यान रखने कौन रखेगा? पुलिस वाला रखेगा। चलिए, सेक्शन 57 हमको सबको पता है ना, व्हाट इज सेक्शन 57? arrested person to be arrested person to be present before magistrate within 24 hours। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंस होना है 24 आवर के अंदर अंदर। ठीक है, तो जो जिसको भी अरेस्ट करोगे पुलिस ऑफिसर को, उसको मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करना होगा 24 आवर्स में। अगर नहीं करता है तो दिस अरेस्ट विल बिकम अनलॉफुल डिटेंशन, इलीगल अरेस्ट। बस, दिस इज व्हाट अरेस्ट इज। ठीक है, याद रखिएगा 58 सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए गोला कर रहा हूँ, बट आपको एक बात पता नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ, इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू टेल और इन्फॉर्म द DM regarding all arrest in his area। तो एप्रीहेंशंस जो उसके एरिया में अरेस्ट हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन DM को जाती है। ठीक है, बट ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना इसको, ये सिर्फ एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है। तो इससे कुछ लोग इसको ही इंक्वेस्ट रिपोर्ट बताते हैं, और वो बता, कुछ ही लोग इसको सॉरी अकरेंस रिपोर्ट बता देते हैं और बोलते हैं कि अकरेंस रिपोर्ट SDM को जाती है। नहीं, कहीं नहीं जाती। अब दिस इज नॉट अकरेंस रिपोर्ट पहले के लिए, दिस इज सिंपल, किन लोगों को अरेस्ट किया गया उसकी अप्रीहेंशन है, नथिंग एल्स। इट्स एन अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट कि हमने किस किस को आपके एरिया में अरेस्ट कर लिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है सेक्शन 58 में। और अगर ये इन्फॉर्मेशन कंप्लाई नहीं किया, इट इज मैंडेटरी, याद रखना, इट इज मैंडेटरी। और इसको कंप्लाई नहीं किया गया है ना, तो 217 IPC लायबल। पीओ पीओ अगर इसको कंप्लाई नहीं करता है तो 217 IPC के अंदर ही इज अ पनिशेबल ऑफेंस, दिस इज पनिशेबल ऑफेंस, ही विल बिकम लायबल अंडर 217 ऑफ IPC। 217 IPC में लायबल हो जाएगा वो। दिव्या, क्लियर हो रहा है? यस और नो? चलिए, तो वी आर डन विद अरेस्ट। प्रियांशु, क्लियर है अरेस्ट का कॉन्सेप्ट?
We're done with the rest. Yes, very good. चलिए, thank you. Tomorrow we will complete